میرا نام ہوا ہے۔ شادی کے 3 ماہ بعد بھی میں اپنے شوہر سے دور رہتی تھی کیونکہ میری عمر ابھی 17 سال ہی تھی۔ لیکن ایک دن میری ساس نے کہا کہ اگر تم مجھ سے دور رہو گی تو وہ اپنے ہاسپٹل کی دوسری لڑکیوں پر نظر رکھے گا۔ اسی دن میں نے دلہن کا لباس پہنا اور پہلی چاہت آخری قسط۔ ارتضا تم پتہ نہیں کب سترو گے۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے وہ حال سے گھر واپس آئے تھے اور سویرا پچھلے 15 منٹ سے اس کو سنا رہی تھی۔ بس بھی کرے مما، ایسا بھی کیا کر دیا میں نے؟ تم نے آج ارہم کو کتنا تنگ کیا تھا، وہ بھی بھلا مانس کہ تمہیں اس نے کچھ نہیں کہا۔ اور تو اور خود اپنی عزت کا ہی خیال کر لیتے۔ سب لوگ ہنس رہے تھے کہ دلہے کو دیکھو کیسے چہک رہا ہے۔ تمہیں تو اتنا بھی احساس نہیں رہا تھا کہ تمہارا اسی وقت نکاح ہوا تھا۔ سویرا کو ارتضا پر رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ اچھا نا مما، آپ دیکھیے گا میں اپنی شادی پر کیسے چپ چاپ بیٹھا رہوں گا۔ ارتضا نے سویرا کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا، پیچھے ہٹو، اتنے بڑے ہو گئے ہو، ابھی بھی میرے کندھے پر جھول رہے ہو۔ سویرا نے اسے پیچھے کیا تھا۔ تو کس نے کہا تھا کہ ہوا کی شادی والے دن میرا نکاح کرتے؟ اچھا اب جانے دے، رات گئی بات گئی۔ ارتضا نے جیسے بات کو چٹکیوں میں اڑا دیا تھا۔ اچھا جاؤ آرام کرو۔ سویرا بھی اس سے مزید بات کرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اسے روم سے جانے کا کہا۔ اچھا بات سنو، تمہاری اسلام آباد کی ٹکٹس ہو گئی؟ سویرا کو یاد آیا تو پوچھا، جی مما، میری اسٹڈیز کا بہت حرج ہو گیا ہے، پیپرز کے بعد ہی اب واپس آؤں گا۔ ارتضا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ تو سویرا نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا، ہاں خیر ہے، جاؤ، اللہ تمہیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ سویرا نے اسے دعا دی تو ارتضا مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ زیب کی آنکھیں کھلی تو اسے کسی کی دبی دبی سسکیاں سنائی دیں۔ دیکھا مرحا جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ مرحا کے پاس ہی آ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ماہی، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ آج تو خوشی کا دن ہے، تمہیں خوش ہونا چاہیے نا۔ وہ اسے روتا دیکھ کر گھبرا گیا تھا، اس لیے تسلی دینے لگا۔ زیب، مجھے لگتا ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ مرحا سر جھکائے ابھی بھی رو رہی تھی۔ مرحا تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تم تو اللہ کی اتنی عبادت کرتی ہو، تم باقاعدگی سے نماز ادا کرتی ہو، حتیٰ کہ تم نے کبھی تہجد بھی نہیں چھوڑی، تو تم نے یہ ایسے کیسے سوچ لیا کہ تمہاری عبادتیں قبول نہیں ہوئیں؟ زہیب مرحا کی باتیں سن کر بہت حیران تھا۔ نہیں زیب، میں ہمیشہ سجدوں میں اللہ سے شکوے کرتی رہی، دعا میں ہمیشہ چھن جانے والی چیزوں پر ناشکری کرتی رہی، تشکر کے الفاظ نے کبھی اپنی زبان سے ادا ہی نہیں کیے۔ آج میں اپنے رب سے بہت شرمندہ ہوں، اس رب نے مجھے کبھی گرنے نہیں دیا، گرنے سے پہلے ہی مجھے تھام لیا، میری دعائیں قبول ہوتی رہیں، مگر میں پھر بھی نہ سمجھی اور ہبا کے نہ ملنے پر خدا سے خفا رہی، ہمیشہ خدا سے گلا کرتی رہی، پتہ نہیں میرا رب مجھے معاف کرے گا یا نہیں۔ زیب اس کی باتیں سن کر سر جھکا گیا تھا کہ وہ تو اتنی گزار ہونے کے باوجود خدا سے ڈرتی رہی تھی، مگر زہیب اس نے تو کبھی اپنی نمازوں کے بارے میں غور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ قبول بھی ہوئی تھی کہ نہیں۔ زہیب آپ سو جائیں، آج ساری رات میں شکرانے کا نفل ادا کروں گی، آج میری دعاؤں میں اللہ سے کوئی شکوہ نہیں ہوگا، آج بس میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گی اور مجھے امید ہے کہ وہ مجھے ضرور معاف کر دے گا۔ مرا اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو زہیب نے بھی اس کی بات کی تائید میں کی تھی، بے شک وہ بہت غفور الرحیم ہے، مگر آج تم اکیلی نہیں ہوگی، آج زہیب اس کے نیک کام میں تمہارے ساتھ ہوگا۔ زہیب نے مرا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، اور پھر وہ دونوں صبح تک نوافل ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہوگی۔ وہ کسی باغ میں کھڑی تھی، ہر طرف اندھیرا تھا، اندھیرا ہونے کے باوجود بھی اسے کسی قسم کا کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، لیکن پھر اذان کی آواز سنائی دی۔ شاید یہ صبح صادق کا وقت تھا، اذان سنتے ہی اس کے اندر تک سکون اتر چلا گیا تھا۔ تبھی اسے کچھ فاصلے پر روشنی دکھائی دی تھی، وہ اس روشنی کی طرف بڑھ گئی، آہستہ آہستہ روشنی اتنی زیادہ ہوئی کہ اس کی آنکھیں چندھا گئیں، اور پھر اس روشنی میں ایک نمودار ہوا تھا۔ اس نے روشنی کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے کیا ہوا تھا، مگر پھر بھی آنکھیں چھوٹی کیے اس وجود کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی روشنی کچھ کم ہوئی تو اسے شناسا چہرہ دکھائی دیا، اور وہ کوئی اور نہیں انسیہ بیگم تھی۔ نانی جان آپ، وہ فوراً سے جا کر انسیہ بیگم کے گلے لگ گئی۔ نانی جان آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلی گئی تھی؟ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، اب دوبارہ آپ مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گے۔ تبھی انسیہ بیگم نے اسے خود سے الگ کیا اور اس کے آنسو صاف کیے تھے اور اپنے پاس سے کپڑے میں لپٹی کوئی چیز اسے دی تھی۔ نانی جان یہ کیا ہے؟ وہ حیران سے انہیں دیکھنے لگی، انہوں نے آنکھوں سے
किया जिसे कह रही हूँ कि खुद ही देख लो। और उसने उनका इशारा समझते हुए जब कपड़ा हटाकर देखा तो एक गोल मटोल बहुत प्यारा सा बच्चा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। नानी जान ये किसका है? वो इस बच्चे को देखकर बहुत खुश थी। तभी बच्चे के बारे में पूछने लगी। ये अब्दुल हादी है, तुम्हारा और अरहम का अब्दुल हादी। ये कहते हुए मुस्कुरा दी और फिर से आंखें से पीछे की तरफ इशारा किया था। उसने नसिया बेगम की नजरों के ने पीछे देखा तो उसके पास अरहम खड़ा था और अरहम भी उस बच्चे को देखकर मुस्कुरा रहा था। अरहम देखे ना, नानी जान आई है, ये कहते उसने जैसे ही वापस मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो बच्चे को अरहम के हवाले करके नसीब बेगम को ढूंढने लगी। नानी जान आप कहाँ चली गई? वो रोते हुए इन्हें ढूंढ रही थी। तभी उसकी आंख खुल गई, देखा कि अरहम उसे कुछ फासले पर लेटा था। उबा का चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। अरहम की आंख खुली तो देखा कि उबा परेशान सी बैठी थी। क्या हुआ उबा, आप ठीक हो? अरम ने उसका भीगा चेहरा देखा तो परेशान हो गया। जी मैं ठीक हूँ, वो नानी जान आई थी। अरम वो फिर से मुझे छोड़कर चली गई, हुबा बताते हुए फिर से रोने लगी थी। अच्छा, ख्वाब में देखा इन्हें? अरम ने कुछ समझते हुए पूछा। जी, हुबा ने तायद में सर हिलाया था। जो लोग इस दुनिया में से चले जाते हैं तो हम इन्हें कुरान पढ़कर बख्श दे तो उनको फायदा हो सकता है, उनके लिए मगफरत की दुआ करके, वरना हमारे रोने से तो हमारे प्यारों को सिर्फ तकलीफ होती है। अरम उसका हाथ अपने हाथों में लिए उसे समझाने लगा। फ्रेड किचन में थी कि फोन बजा। हाँ बोलो अरहम, मामा हुबा से कहिए कि शाम में तैयार है, बल्कि आप उसे अच्छा से तैयार कर दीजिएगा, उसे तो कुछ भी नहीं आता। अरहम ने कहा तो फिलहाल ने मुस्कुराकर हुबा को देखा जो लाउंज में सोफे पर बैठी अपनी किताबें पढ़ने में मसरूफ थी। अच्छा ठीक है, मैं कर दूंगी, तुम फिक्र ना करो, अभी मैं खाना बना रही हूँ, बाद में बात करते हैं। फिलहाल फोन बंद करने लगी तो अरहम फिर से बोल पड़ा। एक मिनट मम्मा, एक उसे मत बताइएगा कि मैं शाम में जल्दी आ जाऊंगा। और अरहम की बात पर फिलहाल मुस्कुरा दी। अच्छा बाबा, नहीं बताती। फोन बंद करके फिलहाल फिर से अपने कामों में मसरूफ हो गई थी। फिलहाल हुबा के रूम में आई थी। हुबा शादी को 2 महीने हुए थे और तुम ऐसे सादा से हुलिये में फिरती रहती हो। तुम्हारा शोर हर वक्त अस्पताल में खूबसूरत डॉक्टर्स के साथ होता है, कोई और पसंद आ गई तो? फिलहाल की बात सुनकर हुबा परेशान हो गई थी, मजाक कर रही थी। हुबा वो तुम्हारा शोहर है, बेशक वो तुमसे मोहब्बत करता है, मगर एक शोहर का अपनी बीवी पर हक है कि उसकी बीवी उसके लिए सजे संवरे, और अगर कोई और अपने शोहर के लिए तैयार नहीं होती तो खुदा उस औरत से नाराज होता है। मैं तुम्हारे कपड़े निकाल रही हूँ, तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हें तैयार कर दूंगी। फ़ियाल ने कपड़े निकाले और जाने लगी। तभी हुआ बोल पड़ी, ताईजान अरम तो आज घर नहीं आएंगे, उनकी नाइट ड्यूटी है। तो फिर भी तुम्हें तैयार होना चाहिए, आज मैं कुछ नहीं सुनूंगी। फ़ियाल ने हुबा की एक नहीं सुनी। हुबा फ्रेश होकर आई तो फ़ियाल उसके हाथों पर मेहंदी लगाई, उसके बाल बनाए, मेकअप किया तो वो जैसे कोई हूर लग रही थी। अरे वाह, मेरी बहू तो बहुत प्यारी लग रही है। एक मिनट, फ़ियाल ने मोबाइल उठाया और हुबा की तस्वीर ली तो वो कुछ कंफ्यूज सी हो गई थी। अरहम का मोबाइल बजा था, देखा तो व्हाट्सएप पर मैसेज आया था। जब चेक किया तो फिलहाल ने हुबा की अभी की फ्रेश पिक्चर्स भेजी हुई थी। वाह बेगम वाह, आज तो अरम के हाथों आपकी खैर नहीं होगी, खुद से कहता वो मुस्कुराने लगा। हुबा मुझे जरा काम है, यहाँ कमरे में रहना तो ठीक, वरना लॉन्च में आ जाना, ये कहते हुए फिलहाल बाहर चली गई। हुबा का फोन बजा था, जिमल की कॉल आई थी। हेलो मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वो जिमल से हाल अहवाल करने के बाद उसे अपने ख्वाब के बारे में बताने लगी। उसने जिमल को ख्वाब के बारे में सब कुछ बताया था। उसके ख्वाब को सुनकर जिमल की आंखें नम हो गई, क्योंकि जिमल ने भी यही ख्वाब देखा था। बस फर्क सिर्फ इतना था कि जिमल ने जो ख्वाब देखा था उसमें जिमल उन लोगों से कुछ फासले पर खड़ी सब देख रही थी। माशाल्लाह, तुमने अरम को बताया? नहीं मम्मा, नहीं बता सकी। क्या कोई ऐसी बात है? जिमल ने खुशी से पूछा। नहीं मम्मा, अभी नहीं। ये सब सोचकर रूबा के दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। तो अल्लाह तुम्हें औलाद की खुशी नसीब फरमाए, आमीन। सारा मैं बाद में बात करती हूँ, अभी मुझे जरा काम है। जिमल ने फोन बंद किया तो जैसे ही वह पलटने लगी, अरम ने पीछे से आकर फौरन उसे अपनी बाहों के खसार में लेते हुए उसके कंधे पर अपनी चोरी रख दी। और हुबा ने निचला लब दांतों तले दबाते अपनी आंखें मीच रही थी। जान अरहम, फिर क्या ख्याल है? अरहम आज हुबा को बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। किस बारे में? वह मुश्किल पूछ सकी। अरहम और हुबा जिमल की मबैन होने वाली सारी गुफ्तगू सुन चुका था। अब्दुल हादी के बारे में जाहिर सी बात है कि वो आसमान से तो नहीं आएगा ना। अरम ने कहते हुए उसके कान की लो को चुमा तो वो लर्ज की थी। अरम छोड़े ना, हुबा उसको पीछे हटाने की उसे अलग हुई थी। आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगाती हूँ, ये कहते हुए बाहर जाने लगी तो अरम ने उसे बाजू से पकड़ के अपने सामने किया था। खाना हम बाहर जाकर खाएंगे, और ये मैंने नहीं कहा, आपकी ताई जान ने कहा है। अब जल्दी से जाने की तैयारी करें, हम ठीक 15 मिनट बाद निकलना है। युवक को बताते हुए वो वाशरूम की तरफ बढ़ गया। अरम कमरे में आया तो वह आईने के सामने खड़ी अपना जायजा ले रही थी। बहुत प्यारी लग रही हो, अरम ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए कहा तो हुबा का चेहरा सुर्ख पड़ गया था, क्योंकि वो जानती थी कि अरम आज उसे बख्शने वाला नहीं। जल्दी करो, निकले।
अरहम उसे कहता वो खुद गाड़ी की चाबियां उठाते उसका हाथ थामे कमरे से निकल गया था। फिर अरहम उसे साथ दिए रेस्टोरेंट की तरफ रवाना हो गया था और फिर वो दोनों रात 1 बजे वापस घर आए थे। सुबह करके चेंज करके आई तो अरहम उसका इंतजार कर रहा था। आप सोए नहीं अभी तक? हुबा ने अरहम के इरादे जांचते हुए पूछा। आज आपको सुला कर सोऊंगा। यहाँ आओ, मेरे पास आकर लेट जाओ। हुबा जानते थे कि आज उसकी बिल्कुल भी खैर नहीं थी, मजबूरी थी। अरहम को नाराज भी नहीं कर सकती थी, जैसे उसके पास आकर लेट गई। जैसे वो उसके पास आकर लेटी, अरहम कोहनी तकिए से टिकाए अपने हाथ पर सर रखे हुबा को देखने लगा। आज आपका सारा वक्त सिर्फ और सिर्फ आपके हस्बैंड का होगा। लेकिन अरहम, हुबा कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। क्या आप नहीं जानती कि अब्दुल हादी इस दुनिया में आए? अरहम ने मायने खेज नजरों से देखते हुए पूछा तो हुबा के हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे। अरहम, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। हुबा उसको करीब होते देखा तो घबरा गई। शी, कहा ना, आज आपका सारा वक्त मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। ये कहते हुए अरम ने हुबा के होठों पर उंगली रखी तो उसे कुछ भी बोलने से मना कर दिया और लाइट ऑफ कर दी थी। अरे, मुझे आपसे एक बात करनी है। हुबा परेशान दिखाई दे रही थी। जी बोले, मैं सुन रहा हूँ। अरम हुबा के पास खड़ी आकर बैठ गया। मुझे वो घर देखना है जिसमें कभी मामा बाबा बीजान और आप सब मिलकर रहा करते थे। हुबा की फरमाइश पर अरम मुस्कुरा दिया। ये तो अच्छी बात है, शाम में चलेंगे। तैयार रहना, अभी तो मुझे निकलना है। और हाँ, कल अदालत में भी जाना है। वो घर आपके नाम है तो आपको कुछ पेपर्स पर साइन करने होंगे, फिर वो हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। अरहम ने बताया। साइन किस लिए? हुबा कुछ समझ नहीं पा रही थी। बीजान ने वो घर आपके नाम किया था, आप खो गई थी तो फिर चाची जान ने हमें उस घर में रहने की इजाजत दी थी, मगर रोज के मुताबिक 18 साल की उम्र में वो घर आपके नाम होना था। लेकिन आप वापस मिल गई और उसकी बात की तस्दीक करवानी है। उन्होंने आपको बुलाया है और हमने बताया तो हुबा ने फिर से पूछा था, अगर मैं ना मिलती तो? अगर ना मिलती तो इस सूरत में ये घर ट्रस्ट में चला जाता, और ये भी जान की वसीयत है कि दूसरी सूरत में घर ट्रस्ट में चला जाए। और हम सारी तफसील बताकर अस्पताल के लिए निकल गया था। हुबा आज उस कमरे में खड़ी थी जिसमें कभी उसके माँ बाप रहा करते थे। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो सामने दीवार पर मरा और आशु की तस्वीरें लगी हुई थी। वो जब तक कितनी ही देर उन तक तस्वीरों को तकती देखती रही और फिर वो कमरे की हर चीज को छू कर देखने लगी। कमरे की सारी चीजें वैसे की वैसी ही थी। अरम हर 2 दिन बाद आकर घर की सफाई करवाता था, इसलिए घर बिल्कुल भी उजड़ा हुआ और वीरान नहीं लग रहा था। मर किस घर से जाने के बाद फिलहाल कभी इस कमरे में आ ही नहीं सकी। कोई चीज उठाना तो बहुत दूर की बात थी। फिलहाल ने मरहा की सारी जेवरात हुबा को दे दिए थे, क्योंकि जब उसने मरहा को दिए थे तो उसने ये कहकर इनकार कर दिया था, इस पर अब मेरा कोई हक नहीं। और इस सामान में से जो चीजें काबिल इस्तेमाल है वो जरूरतमंदों को दे दे, और ये तस्वीरें हम घर ले जाएंगे। हुबा ने कहा तो अरम उसकी बात की तायीद की थी। सर, मैं चाहती हूँ कि ये घर ट्रस्ट में चला जाए। और हुबा की इस बात पर वकील और अरम दोनों ने उसे खैर से देखा था। आप एक बार फिर सोच लें, वकील ने पूछा तो हुबा गहरी सांस लेकर रह गई। सर, अगर मैं कभी ना मिलती तो तब भी ये घर ट्रस्ट में ही जाता ना? हुबा के जवाब पर वकील लाजवाब हो गया था। ठीक है, फिर आप साइन कर दें। वकील ने पेपर सामने रखे तो हुबा ने फौरन साइन कर दिए थे। हुबा आपकी प्रॉपर्टी थी, आपने जो भी किया आप उसका हक रखते थे, मगर आपने ऐसा क्यों किया? अरम को हुबा के इस फैसले की वजह अब तक समझ नहीं आई थी। घर वो होता जिसमें लोग रहते हों, खुशियों से भरपूर जिंदगी हो। ये तो एक ऐसा मकान था जो मेरे माँ बाप की और मेरी खुशियों को ही खा गया। मैं इस मकान को रख कर क्या करती, जो हमेशा हमारे दुखों की वजह बनता रहा। अब हुबा की आंखें नम होने लगी थी। आप तो बिल्कुल ठीक किया। अरम भी वकील की तरफ लाजवाब हो चुका था। हुबा अरहम से कभी बहस नहीं करती थी, लेकिन जब कभी बोलती तो ऐसा बोलती थी कि अरहम कुछ बोलने के काबिल नहीं रहता था। और आज भी ऐसा ही हुआ था। बाकी सारा रिश्ता खामोशी में ही गुजारा था। 3 साल बाद एहतशाम के दोस्त ने अपने बेटे के लिए उस्वा का रिश्ता मांगा था। सो आज उस्वा की शादी थी। अच्छा, और बिया की अगले साल शादी होनी थी। अरहम और हुबा एक प्यारे से बच्चे अब्दुल हादी के माँ बाप बन चुके थे, और अब तो अब्दुल हादी भी 2 साल का हो चुका था। बहुत क्यूट था, बिल्कुल अरहम की तरह। उसने नया नया बोलना सीखा। अरहम को तो बाबा ही कहना था, मगर हुबा को उसके नाम से बुलाता था। अल्फाज सही अदा नहीं कर पाता था तो हुबा को अबा कहकर पुकारता था, जिस पर हुबा का अच्छा खासा मूड हो जाता था। अभी भी वो हुबा को अबा ही कह रहा था। नहीं बेटा, बुरी बात। मम्मा, मैं आपकी मम्मा। बोलो मम्मा। हुबा ने फिर से कोशिश की थी कि उसे मम्मा कहलवाए, मगर वो अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहा था कि वो भी उसकी माँ की हुबा ही कहता था। पहले हुबा को मुंह बनाते हुए गौर से देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा कहा हुबा। अब की बार हुबा तब गई थी और अरहम उसको गुस्से में देखकर हंस रहा था। अच्छा चलो, मैं भी अपने
नाम सीखता देता हूँ। और हमने हुबा को बिगड़ते तेवर देखे तो उसका मूड सही करने के लिए कहा। अब्दुल हादी बोला, अरहम, मेरा नाम अरहम है। बाबा का क्या नाम है? अहम। अब जल्दी से बताओ, बाबा का क्या नाम है? अरहम उसकी तरफ देख रहा था। नहीं बाबा। अब्दुल हादी को शायद अरहम बोलना नहीं आता था, तभी फौरन से बाबा कह दिया, और अब्दुल हादी के जवाब पर अरहम कहकर लगाकर हंसा था। मुझे पता है दोनों बाप बेटे मिले हुए हैं। ये कहते हुए वह जाने लगी तो अब्दुल हादी रोने लगा, उबा उबा। और उसकी मासूमियत पर हुबा को हंसी आ गई थी। हुबा और हम दोनों बातें करते हुए मुस्कुरा रहे थे, और दूर खड़ी मरहा इन्हें खुश देखकर पुरसुकून हो गई थी कि अगर मरहा ने खुदा पर भरोसा किया और उसकी इबादत की तो खुदा ने ना सिर्फ उसे बल्कि उसके भाई और बेटी हुबा को जलील और ख्वार होने से बचा लिया था। कि शाम एहतशाम जैसे फंस गया था। उसकी उम्मीद उसे नहीं थी कि वो कभी वापस आ सकेगा, फिर हुबा दोबारा कभी जिंदगी में उसे मिल भी सकेगी या नहीं। और फिर आशिर के चले जाने के बाद कैसे उसे ज़हेब जैसा हमसफर मिला कि अगर मरा उसका साथ ना मिलता तो वो जमाने की ठोकरें खा रही होती, मगर सच वो जमाने की ठोकरें खा रही होती, मगर सच उसने कभी सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा था, और इन बातों में कभी गफलत नहीं बरती थी, तो खुदा ने उसे उसका रुसवा होने से बचा लिया था। खत्म शुदा।